कर लो, क्या करना है? अभी लाइव नहीं हुआ मैं। ओके, अभी जो है मेरा, मैं आपके फोन से कर लूं? मैं इसमें म्यूजिक चलाऊंगा, जाने दो, कोई बात नहीं, रहने दो। मैं उन्हें फ्रेंड में टैग कर देती हूँ। हम्म। Hi guys, how are you? So, uh, first of all, thanks a lot because it's been 1 month, more than a month since we are running our classes regularly. So, whosoever is joining these classes is welcome, is most welcome. Hi guys, hope you guys are doing well. I hope Corona is treating you really well. So the thing is, Corona is really bad in the city where I am in, which is in America, San Antonio. And this Corona cases are like 500 to 600 each day, and then they are spreading. So all our capacity of the hospital in our town is already, finished or exhausted. So we are going through tough time like as a city, but that's fine. Like with the mind and whatever I can do, I'm doing, keeping my mind calm, cool, by doing yoga, meditations and stuff like that. There is nothing like you just freak out or just worry about. But yeah, I feel sad for people who are hospitalizing and then their relatives. So my brother-in-law got COVID coronavirus in New York, New Jersey. That was really bad, and now they are in control. But now my city is in the, the top 5 city in America, where this thing is exploding like crazy. So no worries, we are safe. I don't go out, not even for the morning walk, not going to gym or my kickboxing. What I'm doing is I have a yoga mat here. I do yoga, I eat healthy food, and I keep my mind calm. That is all what we can. And then I try to uplift other people who are around me, because if you try to uplift someone, else, or if you try to help someone else, that's the biggest help which you can do for yourself, to uplift yourself. So that is how. Okay, so let's get started with the agenda, how we are going to do this class. So a lot of people watch the recording to do yoga later on. A lot of people from Bangalore, from Odisha, from Indore MP, from Mumbai, and then also from North India, Shimla, and all those places. So thanks a lot. You're getting benefited. That's the, that I feel okay, I'm successful if people are following and doing this. So so much thanks to you. Those who are joining online, especially my direct parents, my best friend Rahul, and a lot of other people, my in-laws, my sister, and cousins. So let's get started. Before getting started, we will first go through agenda. We'll start with mantra, then we'll do some mudra pranayam, suksh pranayam for your beautiful face and skin. After that, we'll go through some tough asanas, and that would be all. Fine. So let's get started real quick. So what would I say is, and yeah, I look different. I got this comment, so that's fine. I cleaned off my beard and all, just for a little bit. So it's very important that you guys also close your eyes, and then you also chant whatever way you can chant, like all these mantras. So it sets up the tone in your mind and body, because remember, yoga is not just stretching, right? Yoga is the union of mind, body, and soul. So if your mind is calm and settled, that's where your body will follow, and that's where you can penetrate and tap the energy, which is your consciousness, like, which you can say anything to that, like spirit or soul. तो हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं. हमको बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो मन है और हमारा तन है, ये बिल्कुल उस ऊर्जा को टैप, उससे एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सके.
So let's close our eyes and we will do Om 3 times. Om would be 3. A, U, Ma. So we'll say A with our नाभि getting vibrate. हमारी नाभि vibrate होना चाहिए A के साथ. U जो है वो हमारे हृदय और कंठ के बीच में आएगा. और जो है ये हमारे नाक और हमारा जो तृतीय नेत्र है, थर्ड आई, इसमें वो वाइब्रेशन फील करेंगे. So let's get start with the Om. Take a deep breath in and out. Take another breath in and out. And now take a deep breath in for Om. Now mantra ucharan. First of all, Ganesha. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समग्रव निर्विघ्नं गुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा. आप लोगों को मंत्र आते हैं तो आप भी उच्चारण करें और जोर से उच्चारण करें. वाइब्रेशंस का बहुत फर्क होता है हमारे मन में और हमारे तन में. नहीं तो आप सुन भी सकते हैं आंखें बंद करके. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या तृणं त्वमेव सर्वं मम देव. ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ओम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अचायाणम नमो लोहे सर्वसाहुणम. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, रादर सेकंड. पहले हमारा इंट्रोडक्शन चिट चैट का पार्ट होता है ताकि सब लोग सेटल हो पाए. सेकंड पार्ट होता है हमारा मंत्र उच्चारण, जो बहुत पावरफुल है. संडे अगर आप ये करते हैं मेरे साथ लाइव या फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग चलाते हैं तो ये मंत्र उच्चारण है, साथ में करिए, सुनिए, बहुत अच्छे वाइब्रेशन होते हैं उससे. थर्ड जो है वो हमारा होता है ब्यूटीफुल फेस एंड स्किन एंड बॉडी के लिए, जो हम सूक्ष्म प्राणायाम, सूक्ष्म योगा या फिर सूक्ष्म व्यायाम जिसको बोलते हैं, तो हम उसके साथ में शुरू करेंगे. मगर उसके पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो योग, जो मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था. बेसिकली जिन लोगों को अपना हार्ट अच्छा रखना है या जिन लोगों को लो बीपी या हाई बीपी है, तो वो लोग ये मुद्रा लगा सकते हैं. इसको मुद्रा प्राणायाम बोलते हैं. तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं या कुछ और, या फिर आप टीवी वगैरह देखते हैं, राइट, या आप गाड़ी चला रहे हैं, साइड में बैठे हैं, बस में, ट्रेन में, कैसे भी, ठीक. तो इस तरीके से ये होता है हमारी, ऐसे हम बोलते हैं ना, बहुत अच्छा खाना है, लाइक जो भी, वेरी गुड, राइट. इसी में दूसरी उंगली को ऐड करना है. और ये जो तीनों उंगलियों के टिप्स हैं, ये जो टिप है, इसको इस तरीके से जोड़ना है. तो ये हमारी मुद्रा है. ये अगर मुड़े हुए रहते हैं उंगली, ठीक है, स्ट्रेट रहता है, ठीक है, विच इज फाइन. मगर ये जो एनर्जी के पॉइंट्स हैं, इसको हमको इस तरह से जोड़ना है. इसको वायुदान मुद्रा बोलते हैं. ये हमारे हार्ट के लिए और हमारे लो बीपी हाई बीपी के लिए बहुत अच्छी होती है.
मेरे मम्मी को लो बीपी है, पापा को हाई बीपी है। तो मैंने आयुर्वेदा जी से बातचीत करके और ये चीज़ निकाली कि सबसे पहले मैं क्लासेस में ये मुद्रा सिखाऊँगा, जिससे मेरे मम्मी-पापा को तो फ़ायदा और बाकी लोगों को भी। अभी देखते हैं बाकी और क्या फ़ायदे हैं इसके। तो सबसे पहला है, अगर आपको आलस आ रही है या नर्वसनेस लग रही है, लॉकडाउन है और जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचालन, रक्त में जो ऊर्जा का संचालन है, उसको संचालित, उसको बैलेंस कर देता है। तो जो लेज़ीनेस वगैरह है, वो सारी हमारी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। अभी इस मुद्रा को कब लगाना है, कब नहीं लगाना है और कैसे लगाना है? तो इस मुद्रा को सुबह, दोपहर, शाम, सूरज ढलने के पहले तक लगाना है। अगर हम रात में लगाते हैं, टीवी देखते हुए या कुछ भी करते हुए, तो ये ऊर्जा हमारी तेज कर देगा, ऊर्जा का प्रवाह, तो नींद आने में दिक्कत होगी। तो अपने माता-पिता या आप लोग खुद जब भी दिन भर में आप ऑफिस में बैठे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ये मुद्रा 5 से 10 मिनट, 10 मिनट इज़ द स्वीट स्पॉट कि आप लगाएँ। कुछ काम करते हुए भी लगा सकते हैं, सुनते, बात करते, देखते। मगर इसका सबसे अच्छा अगर आपको इफ़ेक्ट लेना है, तो शांति से बैठें, मल्टीटास्किंग किए बिना, टीवी वगैरह सब बंद, आँखें भी बंद, अपना बैठिए और 18 टू 20 डीप ब्रेथ इन एंड आउट करिए और मुद्रा लगा के रखें। तो उसका आपको सबसे मैक्सिमम इफ़ेक्ट आता है। और जिस समय मन में कोई विचार आ रहे हैं, चलेगा, वो आने दें, शांत रहता है मन जो भी है। मन के अपने थॉट्स को वॉच करते हुए इस तरीके से मुद्रा को लगाएँ, तो आपको आलस को दूर करेगा, नर्वसनेस को दूर करेगा, ऊर्जा को प्रवाहित करेगा और लो या हाई बीपी है, वो आपका पूरा प्रॉब्लम्स ठीक कर देगा और अगर कोई न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स हैं, वो ठीक कर देगा। So let's get started with our face प्राणायाम। तो सबसे पहले हम अपने सिर पे अपने रक्त संचार को तेज करेंगे। Let's get the blood flowing in our head। जो भी लोग ऑनलाइन हुए हैं वो चाहें तो मुझे हाय कर सकते हैं कमेंट्स में डाल के। सो मैं उनको हाय कर रहा हूँ, बट या हाय आप लोग भी डाल सकते हैं कमेंट्स में। सो मुझे एग्जैक्टली पता रहेगा, क्योंकि फेसबुक पे मुझे दिख रहे हैं कि 10 लोग, जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हैं, मगर वो कौन कौन एग्जैक्टली है वो कमेंट करते ही पता चले। सो अच्छी तरीके से आपका जो सिर है वो हो गया। अभी मैं बैठा कैसे हूँ वो दिखा देता हूँ। बेसिकली मैं कैसे भी बैठ जा रहा हूँ, मैं ऐसे बैठ रहा हूँ जो भी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ये आसन लगाएं, प्रॉपर लगाएं कि जो भी है, ठीक है। आप लोग कैसे भी चेयर पे भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं, और रोज करें इसको, तो आपका चेहरा काफी अच्छा हो जाएगा। चेहरा तो ठीक है, आपका मन, रक्त संचार, स्वास्थ्य सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो अब हम करते हैं, अपने माथे को टैप करते हैं। अपना माथा हुआ, अपने गाल हुए, पूरा झिनझिनाना चाहिए ये। इसके बाद हम करेंगे अपने गर्दन को। अब पीठ को, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आज संडे का दिन है। आलस करने की जगह आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ये क्लास में ऑनलाइन है, या बाकी किसी दिन भी अगर आप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग देख के, तो उसके लिए शाबाशी दें पीठ को। अभी शाबाशी देते समय कितने पीछे तक जा सकते हैं हाथ को, कोशिश करें उतना ले जाने की। तो आप देखेंगे 2-3 महीने के अंदर आपका हाथ पूरा एग्जैक्ट पीछे जाके काफी अच्छा होने लगेगा। अभी पीठ में पीछे करें। ये जो है, ये आर्म का मूवमेंट रुक जाता है क्योंकि हम ज्यादा पीछे इस तरीके से हाथ लेते नहीं है ना, तो दैट वुड हेल्प। पीछे अपने बैकबोन में जितना हो सके कोशिश करें। जिन लोगों का पेट बड़ा है वो अपना पेट करें, जिनका छोटा है बेसिकली अपने पेट को खींचे। क्या करना है दिखाता हूँ आपको। मेरा पेट भी बड़ा है, कोई बहुत कम नहीं है, ठीक है, बट स्टिल जब मैं पोस्चर कर रहा हूँ तो मेरी नाभि और बैकबोन है, इसको खींचना है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा पोस्चर होता है लायन चेस्ट, दिस इज द करेक्ट पोस्चर। और दूसरा है, पेट को पूरा गोल किए हुए हैं, कमर को पूरा झुकाए हुए हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं, मुंडी भी टेढ़ी है।
इफ यू आर डूइंग दैट, दैट इज गुड, वंडरफुल, एटलीस्ट आप कर रहे हैं। बट इसको पोस्चर को सुधारने, बैकबोन स्ट्रेट, पेट थोड़ा सा अंदर, नाभि इसके पास रहे और सांस लेते छोड़ते रहना है। सांस को रोक के नहीं रखना है कि फोटो खिंचा रहे हैं तो पेट अंदर कर दिया थोड़ी देर के, नहीं। ठीक, ये हुआ। इसके बाद फिर जो गर्दन है वो भी स्ट्रेट ले जा, जैसे आपको ऊपर रस्सी से कोई खींच रहा है। तो ये आपका मस्त पोस्चर होता है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। 2-4 मिनट हुआ, फिर थोड़ा आराम कर लो, फिर थोड़ा सा अच्छा कर लो पोस्चर, इस तरीके से वो हैबिट में आ जाएगा, संचालन अच्छा आता है। ठीक, सॉरी, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। और जब मैं बोलता रहता हूँ, जब भी आई ट्राई टू शेयर नॉलेज, तो आप लोग जो भी चल रहा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं सुनते सुनते। तो बेसिकली अपने घुटने हैं, पैर बहुत जरूरी है, हमारे शरीर को सारा दिन उठाते हैं, तो हमको हमारे पैर के लिए भी कुछ करना चाहिए, रोज करना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो अपनी खुद की सेवा कर ली जाए। इसमें थोड़ा जोर जोर से हिट करिए, तो ये जो आपके ऊर्जा के जो केंद्र हैं वो एक्टिव होंगे सारे। मैं क्लास के एंड में आपको अभ्यंगा के बारे में बताऊंगा, जिससे कि हम ऑयल से अच्छी तरीके से मसाज कर सकते हैं पैर में, और उसका क्या फायदा है वो सारी चीजें। चलिए, तो फिर वापस हम झंझनाते हुए गर्दन से ऊपर आते हैं। अब थोड़ा सा आईब्रो हो जाए, आईब्रो प्लकिंग। सो इस तरीके से अपना पिंच बनाएं और आईब्रोज को शेप दें। तो हम कर ये रहे हैं कि जो भी नीचे के हमारे पॉइंट्स हैं उसको जो हम मसल्स को मसाज दे रहे हैं, तो ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। सारा दिन मोबाइल, टीवी ये सब कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग फॉर द सर्कुलेशन ऑफ अवर आईज। ठीक, अभी हम करते हैं अपने नोज को। सो नोज से हम इस तरीके से ले जाते हैं गाल से। इसका दूसरा तरीका रहता है कि हम ये जो पंच मारते हैं ना, ये तो पंच में आगे जो नकल्स हैं इसके थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत लाइटली। तो ये हमारी जो आंखों की ग्लाइंड्स रहती हैं, और बाकी के जो ऊर्जा के पॉइंट्स रहते हैं, जो झुर्रियाँ वगैरह आना रहती है, वो सारी की सारी कवर होती है। तो हल्के हाथों से अपने, और हम ये व्यायाम के लिए कर रहे हैं, हमको कहीं मॉडलिंग पे नहीं जाना, बट स्टिल लाइक दिस इज फॉर अ ब्यूटीफुल फेस एंड स्किन। अभी हम करते हैं अपने जहां से आंसू गिरते हैं, ठीक, रो रहे हैं तो आंसू किस तरीके से नीचे आता है, वो वाले पॉइंट्स को हल्का हल्का मसाज करें। वंडरफुल। अब हम आ जाते हैं अपने कान की तरफ, कान को ऊपर से नीचे से। मैं ये एयरपॉड निकाल रहा हूँ, शायद एक ही कान में मैं करता हूँ, आप दोनों में करेंगे। तो कान को पूरी तरीके से पीछे और आगे घुमाएं। अभी आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कान का? हमारा बॉडी का पूरा बैलेंस यहाँ रहता है, सारा दिन 24 घंटे कान सुनते रहते हैं, जब आप सोते भी हैं। तो कान के लिए हम क्या करते हैं, ठीक, तो एक दिन जब योगा क्लास में आ रहे हैं तब बी थैंकफुल टू योर ईयर्स, और उनको अच्छी तरीके से आपको रगड़ के मसाज करना है। ठीक, अभी दूसरा है, आप इसको ऊपर खींचेंगे दोनों कानों को। मेरे इस कान में ये है, सॉरी, हाँ, सो आई कैन नॉट डू इट मोर, बट यू गाइस प्लीज कैरी ऑन। इसको ऊपर करें और फिर नीचे खींचे, इस तरीके से नीचे खींचे। इसको क्रॉस करके भी खींच सकते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स एक्टिवेट करता है, इसको सुपर ब्रेन योगा बोलते हैं। इससे कुछ ब्रेन के ऐसे तंत्रिका तंत्र हैं जो आपकी मेमोरी की पावर को बढ़ाते हैं। इसलिए स्कूल में अगर हम पाठ भूल गए हैं तो हमको टीचर कान पकड़ने बोलते हैं, राइट, ताकि ब्रेन शार्प हो जाए। तो वो जो हमारे अध्यापक हैं वो हमारे दुश्मन नहीं थे बेसिकली, आवर टीचर्स न्यू बेसिकली प्रीवियसली ऑल्सो कि किस तरीके से मेमोरी शार्प करे, कि बच्चा जो भूल रहा है, पहाड़ा याद नहीं है, उसको कैसे याद रहे। वंडरफुल। तो अब हम आते हैं अपने हाथों की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे नमस्कार, फिर हम कर देंगे इसको फ्लिप। ठीक,
तो जो लोग नहीं कर सकते वो केवल ऐसे नमस्कार करेंगे और बैंड करेंगे। बाकी के जो लोग हैं वो इस तरीके से बैंड करेंगे और बाहर की तरफ, मैं कैमरा की तरफ अपने हाथ को खींच रहा हूँ, ठीक, लाइक आगे की तरफ, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इसको जितना बैंड कर सकते हैं वो करेंगे। फिर यहाँ लाएंगे सेंटर में, आगे खींचेंगे, फिर लेफ्ट में ले लेंगे, फिर आगे लाएंगे, फिर साइड में ले जाएंगे। अभी देखने में ये आसन बहुत सिंपल है, मगर इसमें हमारे हैंड्स, फिंगर्स और ये जो रहती है ना पल्स, सब सब कुछ, दे आर एंगेज्ड। So these are simple thing but they are really powerful and amazing. It's a traditional knowledge. योगा हमारा जो प्राचीन ज्ञान है और जो तकनीक है, काफी सारे बॉडी पार्ट्स को एक साथ कवर कर दे रही है। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे और बाकी के लोग इसको ट्विस्ट कर देंगे, जिनसे हो सकता है, जितना हो सकता है। ठीक, फिर हम इसको फिर टर्न करेंगे। ये आप लोगों को लग रहा होगा सिंपल आसन है, हाथ के लिए, मगर मेरे लंग्स भी ऑक्यूपाइड है इसमें, लंग्स का जो एरिया रहता है, और मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ साथ में। अब हम इस चीज को रिवर्स आसन कर देंगे। बाकी जो सिंपल चाहते हैं वो लोग बस ऐसे ही करेंगे, अपने फिंगर्स को ट्रैप करेंगे और ये आर्म्स का मूवमेंट करेंगे, और ट्राई करें जितना होता है इस तरीके से फोल्ड करेंगे। वंडरफुल। थोड़ा सा हाथों को ब्लड सर्कुलेशन हो। ये जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ढीला हो गया है हाथ, ठीक, ऐसे पूरा ढीला। एक तो ये रहता है कड़क है हाथ और यूं कर रहे हैं, एक रहता है पूरा ढीला, जैसे रस्सी हो या कपड़ा हो, उसको कैसे करते हैं ऐसे अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे, मन भी ढीला होता है। तो मन में यू कैन नॉट टेक स्ट्रेस, करो ना लॉकडाउन, नो, जस्ट रिलीज इट, रिलैक्स। तो मुट्ठी बहुत ज्यादा देर बांधेंगे, बहुत कड़क करेंगे, अपनी ऊर्जा जाती है, राइट। सो व्हाट वी डू, आफ्टर सर्टेन पॉइंट वी हैव टू लेट इट गो, लूज। ऐसे ही हमारा ब्रेन बॉडी है कि वी हैव टू लर्न टू लूजन इट अप। अब हम करेंगे अपने कंधों का ट्विस्ट। ये अभी हमारा अपर बॉडी व्यायाम हो रहा है, इसको होल्ड करेंगे। इसमें हमारी स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। अपोजिट हैंड, सो सिंपल है, ये हाथ को लिया, यहाँ टर्न किया, इस हाथ से मैं पीछे खींच रहा हूँ इसको, से थोड़ा सा बेंड कर रहा हूँ। ये हमारा अपर बॉडी, जिसमें हमारा हार्ट, लंग्स, शोल्डर्स, जो हमारे लिम्स, उंगली, हाथ, गर्दन तक सब कुछ कवर है। अभी एक बार नेक रोटेशन कर लिया जाए। सांस को खींचेंगे, छोड़ते हुए आगे जाएंगे, फिर सांस को लेते हुए हाफ रोटेशन, और हाफ रोटेशन के बाद हाथ सांस को छोड़ते हुए फुल रोटेशन। यानी आगे से पीछे जाते हुए सांस लेना है और पीछे से आगे आते हुए सांस को छोड़ना है। ये हम 5 रोटेशंस करेंगे। आप लोग रोटेशन करते जाइए, मैं नॉलेज पॉइंट बताता हूँ। कुछ लोग हैं उनकी ये गर्दन डबल हो जाती है, मतलब गर्दन रहती नहीं है, चर्बी रहती है जो नीचे तक लटकती है, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है ये। और इन जनरल क्या रहता है, हम खाते रहते हैं, सांस लेते हैं, तो ये जो हमारी फूड पाइप वगैरह है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन इंटेंशनली जब आप सांस लेते हुए ये कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो बहुत फायदा देती है। तो हर आसन का, ये मेरे मम्मी जी ने मुझे फीडबैक दिया है कि कोई भी आप जब आसन कराते हैं, अगर थोड़े बहुत उसके फायदे बताएंगे तो लोगों को रुचि उस आसन में बढ़ेगी। इसीलिए मैं थोड़े थोड़े फायदे आप लोगों को बताता जाऊंगा। अभी अपोजिट डायरेक्शन देना, आगे से पीछे जाते हुए सांस को अंदर, पीछे से आगे होते हुए सांस को बाहर। कंटिन्यू करें आप ये। वंडरफुल। अभी हम करेंगे, ये वृक्षासन का ही एक रूप है,
हाथों को ऊपर लेके खींचेंगे, पुल करेंगे अपवर्ड्स में। अब ये कहने को बहुत सिंपल आसन है, राइट, बट इसको कितने इंटेंसिटी से करते हैं तो पसीना ला सकता है आपको। पूरा ऊपर खींचिए, ये मैंने इस तरीके से गन जैसा बनाया हुआ है। कंबाइन योर इंडेक्स फिंगर, मेक अ फिस्ट एंड ट्राई टू स्ट्रेच यू अपवर्ड्स। मेरे कुछ मित्र हैं जो साउथ इंडिया से हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सो आई एम ऑल्सो यूजिंग इंग्लिश। कुछ लोग अमेरिका के भी हैं जो वीडियो देखते हैं, अंग्रेज दोस्त हैं मेरे, सो दैट इज वाई आई एम यूजिंग इंग्लिश एज वेल। जहाँ आप लोगों को कोई फीडबैक हो आप कमेंट्स में लिखें। सो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम करेंगे। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अब हम नीचे आएंगे। ठीक, अपनी उंगलियों को चटका के इस तरीके से वेव बनाए, समंदर की जो लहर है। इसमें क्या हो रहा है, आपकी ये जो उंगलियां हैं ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज पाके लचीली हो जा रही, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। पहले नहीं हो पाता था मेरे से, ये जो स्मूथ फ्लो है जैसे पानी की लहर है, पहले ये इतना नहीं हो पाता था, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते हो गया है। ठीक, अभी हम आ जाते हैं अपने ट्विस्ट पे और रोटेशन पे, जो बैकबोन का है। तो जो लोग कर सकते हैं वो रोटेशन करें, अदरवाइज आप लोग सिंपल ये पैर को रख के इस तरीके से हाथ को रख के वहां पे देखेंगे। सभी लोग ये करते हैं। इसका फिर मैं जब डिफिकल्ट पोज बताने वाला हूँ तो बाकी के लोग ये पोज रिपीट कर देंगे। ये सिंपल पोज है, तो आपको देखना है उस तरफ, आपकी जो नजरें रहेंगी, गर्दन मैंने जैसे बताया था, गर्दन से पूरा सीधा रहेगा आपका पोर्शन, पेट अपना जो है वो पीछे खींचा रहेगा, तो पेट और पीठ चिपके हुए रहेंगे ऐसी स्थिति में, यानी इसको हम बोलते हैं स्टमक इन चेस्ट आउट। आर्मी वाले बहुत यूज करते हैं पोस्चर, स्टमक इन चेस्ट आउट। जब स्पेशली जब परेड वगैरह कराते हैं, तब हमारे जो सर थे स्क्वाड्रन लीडर, वो हमको ये पोस्चर कराते थे। अभी हम अपोजिट कर लेंगे। सो बेसिकली हम इसको इस तरीके से बेंड करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। तो आप ये हाथ का सहारा लेके नीचे रख सकते हैं, या आपका बैलेंस अच्छा है तो इसको ऊपर भी रख सकते हैं हाथ को। रिलैक्स। इसका डिफिकल्ट पोज है वो कुछ इस तरीके से है कि हम ये जो हाथ है, इस हाथ को यहाँ करेंगे और पीछे देखेंगे। तो बाकी लोग वो सिंपल वाला पोज रिपीट कर लें। जो थोड़ा सा एडवांस चाहते हैं, एक बार फिर से दिखाता। मैंने मेरा लेफ्ट लेग बेंड किया है, राइट लेग को लेफ्ट घुटने के यहाँ रखा है, खुद में सीधा हुआ, फिर मैंने इस हाथ को यहाँ लिया, यहाँ जाता है ठीक है, फिर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाके इसको पकड़ लिया और फिर पीछे देखा। 3 सांसों तक। इसका फायदा क्या है, ये जो हमारा उदर है, पेट है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उन सबको जो सिक्रेशन रहता है, एसिडिटी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए बड़ा फायदा है इसमें। दूसरा, बैकबोन के लिए भी बहुत फायदा है। वंडरफुल। अब हम आ जाते हैं अपना लिम्फेटिक नोड्स को पंप करने के लिए, बटरफ्लाई। इसमें दो, एक ये पोस्चर है और दूसरा है स्टमक इन चेस्ट आउट, एकदम स्ट्रेट, सीधे होने के बाद जितना पैर ऊपर जा रहा है उतना करके थोड़ा थोड़ा उसको स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ। सांस को लेते और छोड़ते रहें और अच्छी तरीके से इसको पंपिंग करें, एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। वंडरफुल। अब अगला जो चीज हम करने वाले हैं वो होगा हमारा कैट एंड काउ, कैट एंड काउ पोस्चर। सो
लेट्स डू दैट। थोड़ा सा मैं कैमरे का एंगल चेंज कर रहा हूँ। सो ये इस तरीके से होगा जो थ्रेटन का है। बैक के लिए काफी अच्छा है। जो ऐसा हम सीधे रखते हैं ना हाथ, सेम ऐसे जाएंगे। तो हमारे पैर हैं यहाँ से, ये चिपके हुए नहीं है, मैं ऐसे दिखाता। ये चिपके हुए नहीं है और ये बहुत दूर भी नहीं है, ये पैरेलल है, स्ट्रेट परपेंडिकुलर। और हाथ है, ये हाथ हमारे कंधे के जस्ट नीचे है 90 डिग्री पे। और हमारा पीठ है वो लगभग एक टेबल की तरह है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सांस को लेके बिल्ली की तरह करते हैं और अपनी नाक को नाभि तक लाने की कोशिश करते हैं। फिर सांस को लेते हुए गाय के जैसे करते हैं। तो इसमें कमर, हाथ, कंधे सब सब इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत अच्छा आसन है ये। जिन लोगों की कभी पीठ अकड़ जाती है या जिनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो ये करते हैं। तो ये हम एटलीस्ट 10 बार रिपीट करेंगे। हम अपना सांस को छोड़ते हुए अपने नाभि पे नाक को लाएंगे और सांस को लेते हुए चेस्ट आउट करके ऊपर की तरफ देखेंगे। और फिर रिपीट, कैट, काउ, कैट। जिन लोगों ने बिल्ली को देखा होगा तो बिल्ली इस तरह से स्ट्रेच करती है और ये हो जाता है हमारा काउ, गौ माता वाला आसन। We are doing cat and cow. As you breathe out, you have to do cow. Try to touch your nose with your navel, and as you breathe in, you will become cow. And you will try to pull your navel towards Mother Earth. Wonderful. So अभी हम लोग इसी आसन में थोड़ा सा इसको टफ ले जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग कर सकते हैं बहुत बढ़िया, जितना कर सकते हैं वो करें, नहीं तो आप लोग कैट काउ को रिपीट करते रहें। सो एक पैर को हम पीछे लेंगे और इसको हम होल्ड करेंगे पोस्चर को। अभी यहाँ थोड़ी सी मेहनत वाला काम है। सीनियर लोग हैं वो लोग जितना कर सकते हैं करें, नीचे रख जो लाइक ट्राई एज मच एज यू कैन। और थोड़ा सा और चैलेंज लाने, एक हाथ को यहाँ करें। तो ये हमारा अभी योगा हो गया, बैलेंसिंग हो गया और स्ट्रेंथ भी हो गया, ठीक। तो इसमें मजा आ जाता है। अभी अब इसको थोड़ा और चैलेंजिंग करने के लिए हम अपने घुटने और कोहनी, अभी ये मेरे अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग है, ठीक। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। हम इस तरीके से थे, हमने क्या किया, अपना एक पैर ऊपर किया और होल्ड किया। फिर उसका जो अपोजिट वाला हाथ है वो आगे ले गए और इसको हमने यहाँ पे होल्ड किया। इसके बाद फिर हम अपना मोशन कर रहे हैं। तो जो हमारा पेट है वो इसमें दब रहा है, बैलेंसिंग है वो आ रही। वी आर गेनिंग अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ माइंड ओवर द बॉडी। सो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इज परफेक्ट एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड स्ट्रेच। सो जितना इतना होता है इतना करें, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टच बोथ। नाउ अपोजिट हैंड एंड अपोजिट लेग। लेग को पीछे करें, पहले होल्ड करें थोड़ी देर, तो इससे जो आपका मसल है वो स्ट्रेच हो जाता है। अभी आगे की तरफ लेंगे एक हाथ और फिर हम स्ट्रेच करेंगे जैसे कोई खींच रहा है। बहुत बढ़िया। मैं एक मिनट मेरे घर का फैन थोड़ा तेज कर लो, क्योंकि मैं फुल स्ट्रेच कर रहा हूँ तो मुझे पसीना आ गया है। आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी कैलोरी बर्न होंगे। मैं एक सेशन रखने वाला हूँ, वेट लॉस। वेट लॉस क्या है, कैसे होता है, योगा से कैसे कर सकते हैं, खाने पीने, डाइट, आहार, दिनचर्या, सेपरेट सेशन होगा। तो वो ज्वाइन करिएगा। इट वुड बी हेल्पफुल टू लूज दी यू नो बैड वेट, क्योंकि वेट इज अ गुड थिंग। उसमें कुछ हिस्सा अच्छा है वेट का, कुछ बुरा है, दैट आई विल ऑल कवर। सो वेयर वर वी। तो अभी हम करने वाले हैं बालक आसन। बालक आसन होता है, बालक आसन के पहले इस तरह से जो लोग बैठ सकते हैं बैठ जाएं।
जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वो डायरेक्टली इस आसन पे आ जाए। तो इसके दो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो कैट एंड काउ है उससे आप ऐसे नीचे आ जाए, तो ये आपका स्ट्रेट रहता है, कमर हमारी अभी झुक रही है और हम नीचे की तरफ टच कर रही है। हाँ, आप इसको होल्ड करें, मैं म्यूजिक भी लगा लेता हूँ। तो अब हम थोड़ा सा डीप पोस्चर करने वाले हैं, तो म्यूजिक हमारा मन बहलाती है। सो इस तरीके से सीधा रखते हुए ऐसे करना है, ये पोस्चर को होल्ड करेंगे। इससे हमारे सिर की तरफ खून का संचालन होता है, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, फेस के लिए, क्योंकि सिर हमेशा ऊपर रहता है तो उसमें प्रॉपर ब्लड आ नहीं पाता है, तो इस आसन से ब्लड आएगा। मैं थोड़ा वॉल्यूम कम करता हूँ क्योंकि मुझे चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, इसी आई डू नॉट वांट टू शाउट। ओके, वंडरफुल। अभी हम वापस ऊपर आएंगे और शिशु शिशु वाला आसन करके रिलैक्स होंगे। इसको थोड़ा सा पोस्चर को डीपन करेंगे, तो अपने हाथों को पीछे बांधेंगे और ऊपर की तरफ बेंड करेंगे, तो एडवांस हो गया। नहीं तो आप लोग नीचे रिलैक्स कर सकते हैं। एम हमारा है इसको ऊपर की तरफ ले जाना, होल्ड करना और 15 से 20 सेकेंड होल्ड करके। अभी हम वापस से अपने कैट काउ वाले पोज पे आते हैं और हम अपना साइड में हाथ को लेते हैं इस तरीके से। तो इससे हमारा फुल बॉडी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, फुल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अभी इसको देखिए, करने का एक तरीका है, मैं यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। ये सिंपल ऐसे ऐसे कर दिया और हो गया, पसीना नहीं आएगा, कैलोरी बर्न नहीं होंगे, स्ट्रेचिंग नहीं होगी। आप पूरा खींचेंगे हाथ को और होल्ड करेंगे, तो इस हाथ पे पूरा वजन आएगा, और जब आप इसको यहाँ करेंगे तो थोड़ी आपकी ताकत लगेगी, जिससे आपके कैलोरी बर्न होंगे, स्वस्थ होंगे आप, और मसल्स आपके काम करेंगे। सो स्ट्रेंथ आएगी, पसीना आएगा। नहीं तो पूरे योगा सेशन को ऐसे ही ढीला ढाला कर लिया तो पसीना नहीं आएगा। और अपना मेन एम है, अभी अपने 1.5 महीने हो गए हैं क्लासेस को, तो अगले 3 महीने के अंदर अपने को एक वेट गेन, सॉरी, जिन लोगों का वेट कम है उनके लिए वेट गेन, और जिनका वेट ज्यादा है उनके लिए वेट लॉस करने के लिए प्रयास करना है। So we'll cover things for fitness, for losing weight and also for gaining weight. अभी ये होने के बाद हम लोग थोड़ा सा स्टैंडिंग आसनास पे आ रहे हैं, थोड़ा जंपिंग वगैरह करेंगे और पद्म साधना सीक्वेंस शुरू करेंगे। सो लूजन अप योर बॉडी, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और इस तरीके से हाथों को फैला के एक पैर को बेंड करके, इसको हम वॉरियर पोज भी बोलते हैं। बस होल्ड करिए, वही अपना पेट खिंचा हुआ, चेस्ट आउट, कंधे एकदम स्ट्रेट, ढीले ढाले नहीं, योद्धा की तरह। इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो चाइना के साथ अभी है बॉर्डर पे, राइट? जस्ट थिंक अबाउट दैम, ठंड है, गर्मी है, जान का लिटरल खतरा है, कोरोना वायरस तो उनके लिए भी है, बट स्टिल वो डटे हुए हैं। तो उसी साहस के साथ आपको डटे रहना है, और जितना आप झुक सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं अपने आप को, वो करें। नहीं तो स्ट्रेट रह के भी हाथों को होल्ड करके रखें। हाथ कपने लगे हो तो थोड़ा नीचे कर सकते हैं, बट होल्ड करके रखें इस तरीके से, और सामने देखिए। मैं आप लोगों के लिए कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, बट आपको अपना जो एक हैंड है उस तरफ देखना है, वॉरियर। अभी इसको अपोजिट हैंड पे दिखाएंगे और होल्ड करके रखेंगे।
सांसों को लेते और छोड़ते रहेंगे। जबरदस्त, वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स करते हुए पैर को सीधे करेंगे, हाथों को नीचे लाएंगे, कमर पे लेते हुए धीरे धीरे पैरों को नजदीक लाएंगे। अब हम करेंगे अपना अगला स्टैंडिंग पोज, वृक्षासन। जैसा मैं बोलता हूँ कृष्ण की तरह भी कर सकते हैं आप, यहाँ रख के भी कर सकते हैं, एडवांस वाले यहाँ करेंगे। सो हम ये 10 सेकंड का ट्राई करेंगे, 10 से 15 सेकंड, कि अपने आप को स्थिर रखें। अगर आपका बैलेंस नहीं है, बॉडी कप रहा है, तो अपने से 6 फीट दूर कोई भी एक बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करें और खड़े हो जाए और इसको होल्ड करें, अपने आप को ऊपर से खींचे। तो इसमें आपके जो काफ मसल है, जो आपकी पूरा का पूरा पैर, बॉडी, एक साइड आपका संचालित हो रहा है, लेफ्ट साइड जो है वो पूरा संचालित होता है इसमें। अभी हम रिलैक्स करेंगे, इस पैर को नीचे रखेंगे, दूसरे पैर को, और याद रखें इसको जहां पे आपका घुटना है यहाँ पे नहीं रखेंगे, पूरा नजदीक लाने वाले हैं। सॉरी जी। तो पूरा नजदीक लाएंगे, घुटने के ऊपर नहीं रखेंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे, मन को केंद्रित करेंगे। पसीना अगर आ रहा है, पसीने की बूंद को महसूस करेंगे। इफ यू आर स्वेटिंग, इट्स अ गुड साइन। एंड रिलैक्स। मुझे अभी किसी ने पिंग किया है कि वाटर ब्रेक, जिन लोगों को रेस्ट रूम जाना है तो आप जा सकते हैं। रेस्ट रूम यानी अमेरिका में बाथरूम को रेस्ट रूम बोला जाता है। सो दिस इज द ब्रेक टाइम, इफ यू हैव टू गो टू रेस्ट रूम रियल क्विक, और थोड़ा सा पानी ले सकते हैं। और पानी के लिए ये है कि प्लास्टिक की बोतल ना लें, गर्मियां पड़ रही हैं, लोग प्लास्टिक की बोतल ले आते हैं होलसेल, फ्रिज में रख देते हैं, बहुत बेकार है वो, टॉक्सिन जनरेट करता है। कैंसर जो हो रहे हैं स्पेशली अभी तो इंडिया में भी होने लगे, अमेरिका में प्लास्टिक के वजह से। डिस्पोजेबल चीजें और प्लास्टिक बहुत यूज कर रहे थे वो लोग। पानी को पीते हैं तो हड़बड़ा के पूरा एक साथ नहीं पीना है कि ट्रेन छूट रही है, ऐसे नहीं पीना है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। सो बेसिकली हमारे टंग के अंदर यहाँ पे सलाइवा के ग्लैंड्स होते हैं। जब हम कोई भी चीज खाते हैं या फिर हम कोई भी चीज पीते हैं तो सलाइवा वाले ग्लैंड्स मिक्स होते हैं उस चीज में। इसलिए अपने अंदर मुंह को, पानी को घुमाएं। सो वो सेहत के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उससे सलाइवा अंदर जाते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेम खाने से ऊर्जा आती है, तो आपको बार बार खाना और चाहिए और चाहिए, वो सब वो नीड खत्म होती है, क्योंकि जो खाना है जितना खाया है उससे ऊर्जा आ जाती है। सो यू डोंट नीड लॉट ऑफ फूड टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग थोड़े नौकासन वगैरह करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा पानी ना पिए। मैंने इतना सा पानी पिया है, देख सकते हैं आप, 3 घूंट। चलिए तो फिर हो जाए। अब हम लोग करेंगे नौकासन। सो बेसिकली हम लोग लेटेंगे, रिलैक्स, एक पैर को ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर अपोजिट पैर को ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। जिन लोगों को थोड़ा सहायता चाहिए, अपना ऐसा फिस्ट बनाए, या फिस्ट ना बना के सीधा पंजा रख के अपने बैक में रख सकते हैं, तो आपको इससे मदद मिलेगी पैर को ऊपर नीचे करने में। तो 90 डिग्री तक ऊपर ले जाए और नीचे लाए। और ये अगर आप मेहनत से करेंगे 10 से 15 बार, आपको पसीना आएगा ही आएगा, आपकी एनर्जी जाएगी, खर्च होगी, आपके मसल्स बिल्ड होंगे, डेवलप होंगे, जो कि हमारा उद्देश्य है, which is our primary aim to burn few calories
and give strength to our muscles. अब हम करेंगे थोड़ी सी साइकिलिंग. तो फॉरवर्ड साइकिलिंग करेंगे हम, और ये नीचे भी कर सकते हैं जितना ऊपर हो सके, जिसके घुटने में जितनी गुंजाइश है करने की. Do as much as you can. I'm just trying to do it at the 90 degree, which is the best possible scenario. अभी रिवर्स. इससे आपके सारे के सारे जो जॉइंट्स हैं, थाइज हैं, काफ मसल है, नीज हैं, पंजे हैं, ये सब इन्वॉल्व है. तो इस समय हर जगह रक्त का संचालन हो रहा है और आप अपने सांसों के साथ कर रहे हैं. हाथों को मैंने नीचे रखा हुआ है, मेरे पैंट के हिस्से के नीचे, below my hip bone, so that I get a better grip when I am doing this. And relax. धीरे धीरे आप देखेंगे कि यू आर गेटिंग गुड. जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे आपकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. ये होने के बाद अब हम आएंगे अपने प्राइमरी पोज नौकासन पे. तो पहले हाथ को आगे खींचे, पैर को पीछे खींचे, लिटरली स्ट्रेच करें. अगर आप केवल लेटे हैं, देखिए मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ. आई एम देयर इन माई स्पिरिट. ऐसा महसूस करें मैं आपके साथ हूँ वहीं और आपको देख पा रहा हूँ और आपके हाथों और पैरों को खींच रहा हूँ. तो पूरी तरह खींचे अपने हाथों और पैरों को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. जितना स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छा है. सांस को लें, सांस को छोड़ते हुए स्ट्रेच करें, पूरा फुल बॉडी स्ट्रेच. हाथ ऊपर की तरफ, पैर नीचे की तरफ. 5 सेकंड और कंटिन्यू करेंगे. एंड रिलैक्स. वंडरफुल. थोड़ा सा हम पॉज लेते हैं अभी. तो जिसने मेहनत से किया है उसको पॉज में मजा आ रहा होगा, और जिसने नहीं किया वो ऑलरेडी पॉज में ही था. पॉज यानी विश्राम मुद्रा में था. तो आई होप सब लोगों ने मेहनत से किया है. अभी हम उठेंगे ऊपर की तरफ, पैर को उठाएंगे और अपनी नाव बनाएंगे, नौकासन. जो लोग नहीं कर सकते वो केवल हाथ को उठा ले और थोड़ा पैर को उठा ले. बाकी बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं, वो होल्ड करें इसको जितने देर. डू एज मच एज यू कैन. और चाहिए तो नाव का चप्पू भी चलाएं, और उसके साथ में आप अपने पैर और हाथ दोनों भी चला सकते हैं. ये बैलेंस आ जाएगा. ये कोर मसल है जिसके चलते आपको ये बैलेंस आता है कि आप मूव कर पा रहे हैं, स्टे कर पा रहे हैं. अदरवाइज केवल स्टे करना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था आज से 5-6 साल पहले, और 8 साल हो गए लगभग. तो मैं थोड़ी देर से उठ नहीं पाता था, प्रॉब्लम था, स्टे नहीं होता था. अभी हो गया है पिछले 8-10 साल की प्रैक्टिस में. वंडरफुल. रिलैक्स. थोड़ा सा विश्राम करें. अब हम करेंगे नटराज आसन. तो इस पैर को यहाँ लेके एक हाथ से इसको दबाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे. तो मैं राइट हैंड में देख रहा हूँ, मेरा पैर जो है वो लेफ्ट हैंड में मैंने दबा के अपने बैक को स्ट्रेच किया हुआ है. दूसरा जो पैर है वो रिलैक्स है, पूरा पृथ्वी पे है. और सांसों को लेना छोड़ना महसूस करना है, और जैसे सांस छोड़ते हैं उसके साथ में स्ट्रेच बढ़ाना है. As you take the breath out, you can put a little bit more effort to deepen your pose. यानी you can do a little more stretch as you breathe out. Wonderful. Change opposite. Wonderful. Continue. Wonderful. अभी हम अपने पेट के बल पे आ गए. एक्चुअली में 2 आसन और है, वो करके हम पेट के बल के आसन पे आते हैं. हमने थोड़े स्टैंडिंग पोस्चर किए, सूक्ष्म व्यायाम किया. अभी हम बैक वाले पोज कर रहे थे. तो बाकी के लोग इस तरीके से, सीनियर लोग जो हैं, सीनियर सिटीजन्स, वो वाइपर करेंगे, और जो थोड़े एडवांस और यंग लोग हैं वो सर्वांगासन करेंगे. इसका फायदा आंखों पे बहुत है. बैकबोन, बॉडी, एंटायर बॉडी बैलेंसिंग.
थोड़ा एडवांस करना है तो हाथ छोड़ सकते हैं, मगर इसको करें और ध्यान से करें। गर्दन पे प्रेशर नहीं लेना है, कंधे पे लेना है सारा प्रेशर बॉडी का। फिर धीरे से पीछे आते हुए हल आसन और रिलैक्स होके। हाँ, बाकी के लोग आई बिलीव इस तरीके से अपना वाइपर पोस्चर कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। एंड रिलैक्स होके अपने हाथ पैरों को पूरी तरीके से मोड़ के ऊर्जा को जाने दें, स्ट्रेच करें। स्ट्रेच बढ़ जाता है जब हम थोड़ा कोई आसन करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है तो वंडरफुल। अब हम आते हैं अपने साइडवेज विष्णु पोस्चर में और अपने पैर को ऊपर करते हैं। तो आइडियल पोजीशन है ये, इतना होता है इतना करें, जिससे जितना होता है डू एज मच एज यू कैन, और होल्ड करके रखेंगे। क्योंकि जब मैं इसको खींच रहा हूँ अपने पैर को 90 डिग्री बना के, तो मुझे थोड़ी मेहनत लग रही है, जिससे मेरा पसीना भी आ रहा है, मेरे मसल को वर्क मिल रहा है। अगर मैं ऐसा ढीला ढाला कर दूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा, उसका फायदा मिलेगा, अवश्य मिलेगा। So when I'm trying to put more efforts, I am gaining the benefit out of it. So I have to put whatever 100% I can do to maintain the posture, to deepen the stretch, and as you breathe out, relax. Same चीज opposite leg। आप लोगों को मूव नहीं होना है, आपको बस अपना दूसरा पैर ऊपर उठा लेना है ऑपोजिट लेग, और होल्ड करके रखना है। मैं अभी यहाँ से कर रहा हूँ, मेरा पैर अगर ज़्यादा नहीं आता है मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे भी मैं कर सकता हूँ। मुझे करना है, छोड़ना नहीं है कि शवासन में लेट गए हैं और बस वीडियो देख रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। करते रहना है एज मच एज आई कैन, जितना हो सके उतना करना है, मगर करना है। वंडरफुल। अब हम अपने पेट के पोस्चर पे आते हैं। मेरी सासू माँ ये पोस्चर नहीं कर सकती हैं, तो उनको मैं ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उनको और बाकी के और जो लोग हैं। आप लोग चेयर पे बैठे या नॉर्मल बैठ के, जो आपका नाड़ी शोधन है, ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, तो ये जो आपको उद्यान जो मुद्रा मैंने बताई थी, तीन तीन उंगलियों को जोड़ के उसको मुद्रा को लगाएंगे दोनों हाथों से, और उसके बाद फिर आप थोड़ी देर बैठे रहेंगे और अपना अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेके छोड़ना एंड अल्टरनेट। So we'll finish our class in next 10 minutes. तो अब हम लोग पेट पे आ जाते हैं। तो पेट में सबसे पहले हम करते हैं भुजंगासन। नाभि रहेगी जमीन के नजदीक, बैकबोन ऊपर पूरी और ऊपर की तरफ देखना है, होल्ड करके रखना है इस आसन को। थोड़ा डिपेंड जिन लोगों को करना है वो अपने पैरों को भी मोड़ सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रेच करके रखें। एंड एक बार फिर से करते हैं, सांस को लेते हुए ऊपर आएंगे, होल्ड करके रखेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट। जब हम आसन में स्ट्रेच करते हैं बॉडी को, तो इसका यह मतलब नहीं है कि चेहरे में एकदम टेंशन हो और दांतों को मीस लिया, आंखों को मीस लिया और जोर लगाए, नहीं। चेहरे पे मुस्कान रहेगी विष्णु भगवान की तरह, और आराम से बाकी शरीर जो अपना है उसको एंगेज रखेंगे आसन में। चलिए जी, अब हमारा है हनुमान जी वाला आसन। तो उड़ते हैं हम हनुमान जी की तरह। फिर से मैं बोलता हूँ, अभी हम रिलैक्स हैं, सांस को अंदर खींचेंगे, पैरों को ऊपर करेंगे, हाथों को ऊपर करेंगे और होल्ड करेंगे। एंड रिलैक्स। वंडरफुल। ये आसन अगला जो करने वाले हैं हम, ये इस तरीके से लेटे लेटे पकड़िए आप, कोई खींचने की जरूरत नहीं है। एडवांस वाले लोग अपने आप को सांस लेंगे, खींचेंगे,
और होल्ड करेंगे। एंड रिलैक्स। अभी क्रोकोडाइल है, ये सभी लोग करेंगे, सीनियर सिटीजन्स या जो एडवांस वाले लोग हैं। 2 हाथों से पिलो को बनाए, एक पैर को मोड़े, एक गाल को हाथों के पिलो पे रखते हुए, मेक द पिलो विथ योर बोथ palms, turn, put your cheek on the pillow of your arms, hold your one leg and hear your heartbeats and go in relaxation for 20 seconds. Wonderful. Now come out of the posture. इसके बाद हम करने वाले हैं दो दो चीजें करेंगे। एक है जो सिंपल वर्जन है, जिसको कि हम इस तरीके से करेंगे। एक पर्वत आसन है, ये पर्वत की तरह आपको दिख रहा होगा। अंग्रेजी में इसका नाम है डाउनवर्ड डॉग। तो ये आप लोग करेंगे डाउनवर्ड डॉग, और जो एडवांस वाले लोग हैं वो इसको प्लैंक बना के रखेंगे, प्लैंक एंड होल्ड। तो इसमें आप सीधा रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा जो आपका हिप है, और ऐसा नहीं रहेगा, ये सीधा रहेगा। इसको 30 सेकंड तक होल्ड करें तो आपका पेट, आपके हाथ पैर सब कुछ इन्वॉल्व रहेंगे। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं या महिलाएं हैं, तो वो अपने आप को पर्वतासन का रूप दे देंगी। और जितना आपका शरीर, whatever your body allows, whatever is your strength level, just try to hold on that posture as long as you can. And be aware about your breath. Breath in and breath out. Feel the vibration in your body, if there are any. अपना रक्त संचार जो हो रहा है आपके हृदय में, हाथों की कोशिकाओं में, उनको महसूस करें। इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं अगर आप थक गए हो तो पर्वतासन में। अब घुटनों के सहारे नीचे आते हुए रिलैक्स। अब हम वापस यहाँ आके एक छोटा सा बैक स्ट्रेच करने वाले हैं। तो हम इस तरीके से अपने हाथों को नीचे ले लें। जो एडवांस वाले लोग हैं वो सीधे बैठे, या अगर चेयर पे भी हैं तो चेयर से लेके पीछे के साइड अपना स्ट्रेच करके ऊपर देखें। बहुत अच्छा लगता है ये पोस्चर भी। आसमान को देखें। सांसों को लेते और छोड़ते रहे, और अब आप धीरे धीरे पोस्चर से बाहर आ सकते हैं। सो हमारा 1 घंटा हुआ पूरा, जो हमारी क्लास का टाइम है। तो हम क्लास खत्म करने के पहले शवासन करते हैं। तो आप लोग सब अभी लेट जाएंगे। लेटने के पहले एक बार मुद्रा लगाइए, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये खाना बहुत अच्छा है, ऐसे करेंगे, और उसी खाने बहुत अच्छे में तीसरी उंगली, ये हो गया आपकी मुद्रा। दोनों हाथों से मुद्रा लगाएंगे, इसको रखेंगे। तो नॉर्मल जो पोस्चर है मैं आपको वो बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। आपके किसी मित्र को कोविड हुआ है, अगर भगवान करे किसी को ना हो, तो उन लोगों को ये बता दो। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, एनर्जी का संचार होता है, चुस्ती फुर्ती आती है, आलस और नेगेटिविटी जाती है, रक्त संचार बहुत बढ़िया होता है, स्पेशली फॉर हार्ट कार्डियोवास्कुलर। आंखें बंद करें, एक गहरी लंबी गहरी सांस लें। ये मुद्रा लगाए हुए हैं हम, हाथों को रखे हुए हैं, लंबी गहरी सांस इन एंड आउट। अनदर डीप ब्रेथ इन
and out. Another deep breath in and out. वंडरफुल। इस तरीके से हम अपनी 5 और सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। ये क्लास के अंदर करें। आप बाद में रोज सुबह उठ के ये मुद्रा लगाएं। दिन में 1 से 2 बार तो लगाना है। और ये जो आपके नेल्स हैं इसके पास वाला एरिया टच करना है, क्योंकि लोग ऐसा बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं इसके, जैसे ऐसा कर दिया किसी ने यूं कर दिया, यूं कुछ भी कर सकते हैं। बट ये जो आपका सामने का जो पोर्शन है पॉइंट्स, इसको ऐसे टच करके बीपी वालों के लिए दी बेस्ट है। वंडरफुल। ये मेरे मम्मी को लो बीपी है, पापा को हाई बीपी है, उनके लिए बेस्ट है ये। और बाकी सभी लोगों के मम्मी पापा के लिए भी बेस्ट है करने के लिए। अब हम करते हैं अपना अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। तो तीसरी आंख पे अपना प्लीज, मैं इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। जॉइन योर मिडिल फिंगर विद द इंडेक्स फिंगर एंड पुट इट इन द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन, क्लोज योर right nostril and breathe out from your left. Now breathe in from left and close your left nostril and breathe out from right. Now breathe in from right and breathe out from left, and keep switching your nostrils, left and right, alternate nostril के लिए। हमने इतना 1 घंटे जो योगा किया है इसमें हमारी बॉडी में काफ़ी एनर्जी फ्लो है, तो हम उसी का फायदा उठाते हुए अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों को चार्ज कर रहे हैं या ऊर्जा पहुंचा रहे हैं विथ ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। अगर आपको कभी थोड़ा भी डिप्रेस लगे, चेयर पे बैठ जाएं और ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग करें। 10 से 15 सांसें इस तरीके से करने से बहुत अच्छा लगने लगता है। क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, पूरे शरीर के 2 हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट आई, राइट आई, लाइक दैट। तो एक हिस्सा है जो मेमोरी वगैरह का काम करता है, जैसे चित्र हुआ वो सब। दूसरा है वो मेमोरी नहीं, वो 2 और 2 4 इस तरीके के गणित वगैरह जो है वो करता है। जब एनालिसिस हो रहा है, हाय मेरा क्या होगा, कोरोना का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, मेरी फैक्ट्री का क्या होगा, नेगेटिव मोड पे जाना है। और एक क्रिएटिव मोड है जो लेफ्ट ब्रेन म्यूजिक जो वगैरह है, तो दोनों को बैलेंस में ला देती है ये चीज। बहुत पावरफुल, मैं तो बहुत यूज करता हूँ। Now finish your last round by breathing out from your left nostril. जब मैं कुछ बोलता हूँ समझाता हूँ, मगर आप अपना आसन कंटिन्यू कर सकते हैं इस समय भी। अब हम शवासन करेंगे, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आप लोग सब लेट जाएं शवासन में। मैं आपके साथ करूंगा नहीं, आप लोगों को करना है बेसिकली। सो नाउ यू विल लाई डाउन, रिलैक्स योर लेग्स, रिलैक्स योर एंटायर बॉडी। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने राइट पैर के नाखूनों की तरफ ले जाएं। अब अपने घुटनों की तरफ ले जाएं और घुटनों को रिलैक्स करें। नाउ योर थाइस, राइट हिप्स, एंटायर राइट लेग, रिलैक्स योर राइट लेग। कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट, टेक डीप ब्रेथ। जैसे फूल को हम सूंघते हैं, रोज का फ्लावर है या जो भी खुशबू आपको बहुत पसंद है उसको सूंघिए, उतनी गहरी सांस लें। अब अपना ध्यान लेफ्ट पैर के नाखूनों की तरफ ले जाएं, घुटने की तरफ। नाउ टेक योर अटेंशन टू द थाइज ऑफ योर लेफ्ट लेग एंड हिप्स। अभी अपने नाभि की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। नाभि वो पॉइंट है जिससे आप अपनी माँ के साथ जुड़े हुए थे जब आपका शरीर बन रहा था।
सारी ऊर्जा, सारा खाना, सारी सांस सब आपको इसी केंद्र से कई महीनों तक मिली थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। पूरा ध्यान नाभि की तरफ ले जाएं और जो भी अपनी माँ है, आप अपनी माँ को याद करते हुए ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद का अनुभव करें। अब अपना ध्यान अपने चेस्ट के केंद्र पर ले जाएं, हार्ट पॉइंट। नाउ टेक योर अवेयरनेस टू योर हार्ट। ट्राई टू हियर द बीट। ये दिल सारा दिन धड़कता है हमारे लिए, रक्त को हमारे शरीर में अच्छी तरह से दौड़ाता है। अपने हृदय को ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद करते हुए महसूस करें। हृदय की धड़कन के साथ आपके हाथों में जो आपकी नर्व्स चलती है उसको महसूस करें। देयर इज अ सिंक बिटवीन द हार्ट बीट एंड द नर्व्स। ट्राई टू एक्सपीरियंस दैट। अब अपने राइट हैंड के नाखूनों की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। राइट एल्बो, राइट शोल्डर, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट नेल्स, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट शोल्डर, थ्रॉट रीजन, नेक, लिप्स, टंग। टंग को थोड़ा सा अपने माउथ में रोटेट करें। प्लीज मूव योर टंग इनसाइड योर माउथ। फील द सलाइवा, फील योर टीथ, ईच टीथ। आपके 32 दांत हैं या 20 दांत हैं, महसूस करें हर दांत को। नाउ टेक योर अटेंशन टू योर नोज। आपके 2 नोस्ट्रिल हैं, यूजुअली उसमें से एक नोस्ट्रिल से सांस आती और जाती है। अगर आप अच्छी तरीके से फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे, अवेयर रहेंगे, सो यू कैन फील दैट। सो दोनों नोस्ट्रिल में किस तरह से सांस आ रही है और जा रही है उसको महसूस करें। नाउ बिकम अवेयर अबाउट योर आईज। ये फिजिकल वर्ल्ड का आपका दरवाजा है जिससे आप ये खूबसूरत दुनिया देख पाते हैं और इन आँखों को बंद करके अपने अंदर की खूबसूरत दुनिया तक पहुंच पाते हैं। तो ये एक दरवाजा है अंदर और बाहर की दुनिया के बीच का। अपनी आँखों को महसूस करें, आँखों के रेटिना, आइरिस, eyeballs. Now take your attention to your eyebrows, to your forehead, third eye, and now to your head and entire body. पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। टेक अ डीप ब्रेथ इन, जैसे एक फूल को सूंघ रहे हैं या कोई बहुत अच्छी भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू को सूंघ रहे हैं। एंड ब्रीथ आउट। टेक अनदर ब्रेथ इन and breath out. Take another deep breath in and let go. रिलैक्स। अब आप अपने उंगलियों को, हाथ और पैर की उंगलियों को हल्का हल्का हलन चलन कर सकते हैं। अब आप अपने राइट हैंड का सहारा लेके धीरे से उठ सकते हैं, या अगर आपको अच्छा लग रहा है शवासन रिलैक्सेशन में तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये क्लास यहाँ ख़त्म होती है। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। मैं टाइमिंग शेयर कर दूंगा अगली क्लास का, क्योंकि मैं 5 दिन के मौन व्रत में जा रहा हूँ, विच इज़ कॉल्ड एज साइलेंस कोर्स। वो साइलेंस कोर्स संडे रात को ख़त्म होने वाला है।
अमेरिका के टाइम के हिसाब से, यानी वो आपका मंडे मॉर्निंग हो जाएगा। सो वो साइलेंस में मैं योगा सिखा पाऊंगा कि नहीं, ये मुझे मेरे टीचर से पूछना पड़ेगा। सो प्रोबेबली संडे की क्लास का टाइमिंग कैसे क्या होता है मैं बताता हूँ, नहीं तो वो मंडे को करेंगे, मगर क्लास होगी जरूर। एक दिन आगे पीछे होगी मगर क्लास छोड़ेंगे नहीं। और आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना खुद का सेहत का ध्यान रखने के लिए आए और आपने क्लास अटेंड करी। थैंक यू। एक फेसबुक पेज मैंने बनाया हुआ है जो फिटनेस के ऊपर है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं इस की रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर करता हूँ, और वो रिकॉर्डिंग से भी आप आगे बाकी के दिनों में योगा कर सकते हैं। और बेसिकली आप अपने मित्रों को या परिवारजनों को बांट सकते हैं। तो ये जो फेसबुक पेज है इसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस विथ प्रेम। सो बेसिकली इस पेज में सारी जो क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, और कुछ कुछ और जो नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है मैंने। जैसे मुद्रा है तो मुद्रा किस तरीके से लगाना है उसका पूरा फोटो है, यूट्यूब का वीडियो है, सारी जानकारी दी हुई है, उसके फायदे नुकसान सब दिए हुए हैं। और पिछली क्लास है, जैसे ये योगा क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3, 2, 1 सारे क्लासेस अभी तक हुए हैं, वो सारे भी इसमें हैं। So you can always get that. Like this page, share with your friend. This is for you. This is for your fitness, with your friend, with your relative, or with your son Prem Asim Jain. धन्यवाद, नमस्कार and जय जिनेन्द्र।